Good morning, ma'am. Good Good morning. morning. Can you see my screen? Yes, ma'am. Yes, Yes. ma'am. Yes, Very ma'am. good. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So, good morning, everyone. Uh, Good morning, ma'am. so, today, the topic I have taken up is gender sensitization and why does it matter? So what I'm speaking behind a screen, so I don't know when I will go off and my slides will not move. So please let me know when my slides have stuck or they are not moving. So what I'm going to do in today's talk, I have divided it into 7 topics. First is we need to understand the concept of gender sensitization. I will discuss few important concepts. There is a very important report called the Global Gender Gap Report, and I want to discuss that. Then I will look into India, what are the areas where we have gender related problems. Then because of the pandemic, what impact it had on gender. And since there are so many men in this course, I would like to speak about men's role in building gender and then what are the new approaches. I hope I want to do so much in this. I hope I'll get time. Now, when we talk of gender sensitization, it means that you become sensitive to these concerns, to concerns of equality and gender. And it also helps you examine your personal attitudes and belief. See, today we have reached a stage where we know publicly that this is wrong, we should not speak like this. But this does not mean that our own perceptions, our own attitudes have changed. So you can have a look, because our attitudes, our beliefs, all these have come with so many, baggages. Our family, the patriarchal society we live in, the society that surrounds us, the media that surrounds us. And so gender sensitization leads to a modification of behavior whereby we become more aware and we become empathetic and we are able to create a gender just society. Now if we have a gender just society and we are gender sensitized, it would be a very important instrument for social change. And one can understand, both men and women can understand the multi-dimensional role that women play in our society. And it can be a very critical instrument to improve our knowledge about society, which at present remains very partial, biased, and it is projected in a way that it derives from a very male perspective. So how can we develop a new perspective? First of all, we have to be aware of it. If we are not even aware, what can we do? I'll give you an example. This was in the 90s. ये कोरोना से बहुत पहले था. अब तो हेल्थ के बारे में लोगों को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हो गया. पीपल अंडरस्टैंड इट. हम लोग ओडिशा के गांव में बीडी वर्कर्स पे काम कर रहे थे, तो हमको 5 बजे निकल के जाना पड़ता था. और क्योंकि ये लोग 5 से 7 मिलते थे, फिर शाम को मिलते थे ना, सारा दिन खेती में उसमें इन्वॉल्व रहते थे. एक दिन हमारी बस मिस हो गई. 1:30-2 बजे हम भूखे प्यासे चलते आ रहे, मैं और मेरे साथ मेरे 4-5 स्टूडेंट थे. थोड़ी दूर पे जाकर के हमने देखा एक आदमी कुछ बेच रहा है एक ठेले में. दौड़े दौड़े हम गए. हमने कहा चलो कुछ तो खाने को मिलेगा. तो जैसे ही हम गए हमारी सारी भूख खत्म हो गई, क्योंकि इतनी मक्खियां भिनभिना रही थी. खुला था तो उसकी जलेबी के ऊपर. तो मैंने उसको यही बोला, मैंने कहा भैया इसको आप ढक क्यों नहीं देते? तो वो मेरे से कहता है कि मैडम कितना खा लेंगी मक्खियां. देखो, जब आपके पास अवेयरनेस ही नहीं है तो आप क्या करोगे? सो the same thing, unless we are aware of this issue, we cannot really deal with unequal relations. It will help us understand gender disparity, women का क्या contribution है society में. और एक बार हम aware हो जाते हैं, understand करते हैं, it can also bring in action. तब action आता है and it helps us to understand the roots. क्यों ये inequality है, क्यों women invisible है, marginalized है और exclusion है. और हम एक जेंडर जस्ट सोसाइटी क्रिएट कर सकेंगे. तो इसके लिए हमको सबसे पहले थोड़े कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा और तभी हम एक जेंडर इक्वालिटी की तरफ बढ़ेंगे. नाउ 2 बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. एक है सेक्स और दूसरा है जेंडर.
सेक्स क्या है, आप पैदा होते हो लड़का या लड़की, इट इज नेचुरल, समथिंग गिवन, ये कांस्टेंट है। और इसमें ये नॉन हायरार्किकल, आप या आदमी है या आप औरत हैं, women is one sex and men are the other, कोई biologically distinctive group नहीं है, और no connotation of a subgroup। लेकिन इसके अलावा जब जेंडर है, ये एक सोसाइटी द्वारा क्रिएटेड है, सोसाइटी ने इसको क्रिएट किया, एक सोशल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में होता है, और आप इसको सीखते हो। और सिंस इट इज नॉट नेचुरल, ये एक आर्टिफिशियल क्रिएशन है, इसको हम बदल सकते हैं। सेक्स इज नॉट हायरार्किकल, बट ये बहुत हायरार्किकल होता है। और अगर आप देखें तो दो, जिस तरह से हम जेंडर की हम बात करते हैं, इट इज आर्टिफिशियल क्रिएशन, बट सेक्स इज समथिंग विच इज नेचुरल देयर। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पेट्रियार्की का। पेट्रियार्की का मतलब फादर का रूल है। ये एक सिस्टम है सोशल स्ट्रक्चर और प्रैक्टिसेस का, where there is male dominance and women subordination. I hope it is fine that I use both the language, or you want me to speak only in English? Yes, ma'am. Both Ma'am, both language. Okay. फाइन। तो ये ना एक ऐसा सोशल स्ट्रक्चर और प्रैक्टिसेस हैं जहां पे ये मान के चला जाता है कि मेन सुपीरियर हैं, डोमिनेंट पोजीशन में, एंड वुमेन सबऑर्डिनेट हैं। और ये क्या है, एक इंटरलॉक करता है अदर सोशल स्ट्रक्चर्स के साथ, कास्ट के साथ, क्लास के साथ। बट इसका मतलब ये नहीं कि हमने पूरी दुनिया को दो भागों में बांट दिया, एक तरफ सारी औरतें, एक तरफ सारे मेन हैं, और सारे मेन डोमिनेटिंग हैं, सारे औरतें सबऑर्डिनेट हैं। ये बिल्कुल इसका मतलब ये नहीं है, क्योंकि अगर आप देखें हमारे जितने भी मेल रिफॉर्मर्स थे 19th सेंचुरी में, जब सोशल रिफॉर्म मूवमेंट आया, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, दयानंद सर, सबने विमेन के क्वेश्चन को लिया था। तो ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप इमेजिन करिए एक फैक्ट्री में जो चौकीदार है और उसकी जो फैक्ट्री ओनर की वाइफ है, वो तो डोमिनेंट पोजीशन में रहेगी ना चौकीदार के मतलब से। बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट है, जो चौकीदार की वाइफ है वो डबली ऑप्रेस्ड होगी। शी विल बी ऑप्रेस्ड बाय द ओनर ऑफ दैट फैक्ट्री। चौकीदार आई मीन जिसका फैक्ट्री में काम करता, उसका जो ओनर है वो भी उसको क्लास की वजह से सप्रेस कर सकता है, और खुद उसका अपना हस्बैंड भी उसको सप्रेस कर सकता है। तो ये एक डबल ऑपरेशन हो जाता है वुमेन के लिए। और पेट्रियार्की में क्या कंट्रोल होता है मेन के पास? सारी प्रॉपर्टी, इकोनॉमिक रिसोर्सेज उनके नाम पे होता, लेबर उनके नाम पे होता, रिप्रोडक्शन, कितने बच्चे होने, क्या होना, सेक्सुअलिटी, आप मूव कर सकते हैं कि नहीं, आप कहाँ जाओगे, ऑल दीज आर देयर। और हम चारों तरफ एक मैनिफेस्टेशन देखते हैं पेट्रियार्की। आज हमारी सोसाइटी में सन की कितनी वैल्यू है ना, देयर इज सन प्रेफरेंस। हम सब बोलते हैं कि नहीं सब इक्वल है, लड़कियां भी इक्वल है, लेकिन रियलिटी है कि ये सन प्रेफरेंस है हमारी सोसाइटी में। क्यों है, मैं इसको डिस्कस करूंगी। और बहुत सारे घरों में जहाँ खाने की कमी है, डिस्क्रिमिनेशन होता है फूड डिस्ट्रीब्यूशन में, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज भी लिमिटेड है। अगर एक फैमिली में इतने मीन्स नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, दोनों को पढ़ाना है, लड़का लड़की को, और सेम फीस है, उनको इंजीनियरिंग की सीट मिली है, तो डेफिनेटली प्रेफरेंस बेटे को दिया जाएगा। डोमेस्टिक वायलेंस इज देयर, सेक्सुअल हैरेसमेंट, रेप, एंड रिप्रोडक्टिव राइट्स एंड प्रॉपर्टी राइट्स आर नॉट देयर। तो पेट्रियार्की को हम फेमिनिज्म से ही डील कर सकते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन इज whereby a child becomes an individual, so that you respect your environment, norms and customs. And it is a more focused form of socialization. जहाँ पे हम जेंडर की बात करते हैं कि how are girls socialized? You are taught by this process what it means to be male and female. आप देखिए किस तरह के टॉयज हम लड़कियों को देते हैं, किस तरह के टॉयज हम लड़कों को देते हैं। सोशलाइजेशन का प्रोसेस है। लड़कियों को हमेशा गुड़िया देंगे, लड़कों को ट्रक्स देंगे, कार देंगे। हम कभी लड़कों को गुड़िया नहीं देते और लड़कियों को बचपन में कार्स नहीं देते ना, किचन सेट, ये सब। तो ये सारे सोशलाइजेशन के प्रोसेस है। और इन कॉन्सेप्ट की वजह से हमने पूरे वर्ल्ड को दो भागों में बांट दिया। एक पब्लिक वर्ल्ड है, एक प्राइवेट वर्ल्ड है। प्राइवेट वर्ल्ड जो है वो विमेन से एसोसिएटेड है, होम, फैमिली, डोमेस्टिसिटी, रिप्रोडक्शन, चिल्ड्रन। एक्सटर्नल वर्ल्ड है, लेबर, मिलिट्री, डिफेंस, डिसीजन मेकिंग, लाइवलीहुड, ये सारा मेन से रिलेटेड है। और हमने ह्यूमन क्वालिटीज तो सेम है,
ह्यूमन नेचर सेम होता है, लेकिन उसको भी हमने मैस्कुलिन फेमिनिन में डिवाइड कर दिया है। हम औरतों को कैसे देखते हैं, दे आर नॉट एग्रेसिव, नॉट इंडिपेंडेंट, बहुत इमोशनल है, रोती हैं हर बात पे, सब्जेक्टिव है, दे कैन बी इजिली इन्फ्लुएंस्ड, होम ओरिएंटेड। और men are seen to be very independent, aggressive, not emotional, very dominant, logical, they never cry. And how do we warmth? How do they express? Women are supposed to be very tactful, talkative, gentle. They are aware of others' feeling. They are very conscious about their looks, neat habits. Men are not so talkative, blunt, rough, not conscious about their appearance, and they do not need it. You know, ये सब perceptions हैं, but the reality is different. आज men भी इतना equally bothered about their looks as women are. Many men also go to parlor, but you know, these are the perceptions that we have. एक गेल रूबिन जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, he gave a name to this role saying sex gender system, where we have institutionalized the whole system which allows resources, property and privileges according to gender defined roles. अगर आप women के role देखो, एक केवल एक role नहीं है, they have also productive role, reproductive role, community management role. तो women की triple roles है, multiple roles. तो और वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इक्वालिटी एंड इक्विटी। इक्वालिटी जो है हमारा लॉन्ग टर्म जेंडर गोल है, जहां पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा बेस्ड ऑन सेक्स, एंड दे बोथ शेयर इक्वली इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। इक्विटी ये है कि वेयर यू हैव टू बी फेयर टू वुमेन, you know, you because of social disadvantages we don't have a level playing field. और ये है कि इक्विटी से ही हम इक्वालिटी की तरफ बढ़ेंगे। एक एग्जांपल दीजिए, अगर बच्चों को कुछ मैच देखना है, इक्वालिटी की बात करेंगे, हम सबको बराबर का स्टूल देंगे, उससे फायदा हो या नहीं, लेकिन इक्विटी में जिसको जरूरत नहीं है उसको नहीं मिलेगा, जिसको एक की जरूरत है उसको एक मिलेगा, जिसको दो की जरूरत है उसको दो मिलेगा। सो दैट इज व्हाट इज इक्विटी अबाउट। एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आई है वर्ल्ड में विच इज कॉल्ड द ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट इंडेक्स। इसको सबसे पहले 2006 में वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस किया था। आप अगर नेट पे जाएंगे, गूगल पे, जस्ट टाइप ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, आपको हर साल की मिल जाएगी। और इसने क्या किया है, पूरे वर्ल्ड को 8 ज्योग्राफिकल पार्ट्स में डिवाइड किया है। ईस्ट एशिया एंड पैसिफिक, लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन, नॉर्थ अमेरिका, सब सहारा, ईस्टर्न यूरोप, मिडिल ईस्ट, साउथ एशिया, वेस्टर्न यूरोप। हम लोग साउथ एशिया में आते हैं। और we have the maximum number of women, you know, it is home to more than 860 million women, और 3/4 जो है इंडिया में रहते हैं। लेकिन what is interesting, साउथ एशिया में जेंडर गैप बहुत सेकेंड लार्जेस्ट है, हमसे ज्यादा मिडिल ईस्ट और नॉर्दर्न अफ्रीका में है, जिसको मीना रीजन कहते हैं, और साउथ एशिया में ये सेकेंड लार्जेस्ट है। और इतने साल के बाद हम हालांकि प्रोग्रेस कर रहे हैं, फिर भी हम इक्वालिटी की तरफ नहीं पहुंचे हैं। और ये रिपोर्ट कहती है कि इट विल टेक अस 71 years टू क्लोज दिस गैप। बांग्लादेश थोड़ा इंप्रूवमेंट हुआ है, और उसके बाद यू नो इंडिया का जो रैंक है 112th है। अगर 22 में आप देखिए, हमारा रैंक 135 था वर्ल्ड में, और 2023 में it came to 127। तो हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। आउट ऑफ टोटल 146 कंट्रीज 127 हमारा रैंक है। लेकिन ये पॉइंट आउट करती है रिपोर्ट 2024 की कि इकोनॉमिक गैप जो है वो बहुत डीप है इंडिया में, और 2006 से मेन एंड वुमेन के बीच में ये बढ़ते जा रहा है। और अगर हमने 64.3% गैप क्लोज किया है, लेकिन फिर भी हम इक्वालिटी की तरफ नहीं आए हैं, क्योंकि विमेन लोअर रैंक्स पे हैं, उनकी सैलरीज लो हैं, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट भी हालांकि थोड़ा बेटर रिकॉर्ड रहा है, बट स्टिल इट इज देयर। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2020 में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की है कि when women are actively involved, it leads to a greater well-being, better functioning of the economic system and the labor market. Indeed, the growth of female employment rate and the reduction of gender gap in the current world context can represent a very strong stimulus to GDP. तो ये मानती है कि unless women are involved in the economic system, in the labor market, हम कुछ भी growth नहीं हो सकती है।
और ये रिपोर्ट ऑल्सो पॉइंट आउट करती है कि कोविड-19 से पूरा वर्ल्ड सिस्टम जो है उसको बहुत टाइम लगेगा फिर से रिकुपरेट करने के लिए, सस्टेनेबल मार्केट सिस्टम्स बिल्ड करने के लिए, क्योंकि इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ है. अब नाउ लेट मी कम टू इंडिया. व्हाट आर द एरियाज वेयर यू हैव? सॉरी मैम, मैम आप पीपीटी मूव कर रही हैं तो मूव नहीं हो रही है शायद वो. है, एक मिनट. हाँ, ये कभी ना, आई थिंक मैं जी मैम, ये प्रॉब्लम होती है इसमें. इफ आई मेक इट फुल, कैन यू सी माय पीपीटी? Yes, yes, ma'am. यस मैम. आई डू इट. अगर ये बड़ा पे करती हूँ तो कभी मूव नहीं करती, मैं छोटे पे ही करती हूँ. आई विल शेयर माय पीपीटी लेटर ऑन. ओके? Okay, ma'am. Yes, Thank you. ओके मैम, थैंक यू. Okay, ma'am. So then, there are different areas where you have gender inequality. I look at social, polity, health, education, and economy. Now, क्या हो गया इसका? 1 minute, 1 second. One second, there's some issue. 1 minute. I'll just stop presenting. I'll do it. Okay, ma'am. What is happening? Why are this? Is it visible? Yes, ma'am. Yes ma'am. So the Yes, biggest yes, issue ma'am. is about the, how do we save the girl child? Now, why do we prefer a son in our families? ये, economic reasons है, religious reasons है, social and emotional है. And parents, they always expect a son because ये मान के चला जाता है कि they are the ones who will provide financial and emotional support जब old age होता है. और ये, patriarchal families में इतना deep ingrained belief है. Property laws have resulted in such a way that women don't get laws. And today you have more than 160 million women who are missing. Now, it is a son who gets more value than a girl. अथर्ववेद जो हमारी पुरानी टेक्स्ट है उसमें एक प्रेयर है जहां पे जब वाइफ प्रेग्नेंट होती है, बोथ हस्बैंड वाइफ जा करके सूर्य भगवान से प्रेयर करते हैं कि हे भगवान यहाँ पे हमको एक बेटा दो, लड़की का जन्म कहीं और करना. सामवेद मंत्र ब्राह्मणा में भी ये मेल चाइल्ड के लिए prayers hai. Unto thy womb let a fetus come, a male one as an arrow to a quiver. Let a hero be born. और एक और प्रेयर है, give birth to a male, a son. After him let a male be born. May be thou the mother of sons. We have so many blessings which says, दूधो नहाओ पूतो फलो, और may you be the mother of 100 sons. तो ये पुराना इतने सालों से चला आ रहा, 3-4 हजार साल से. हिंदू सिस्टम ऑफ फिलॉसफी में हम लोग वानप्रस्थ आश्रम में जाने से पहले गृहस्थ आश्रम में रहते हैं. तो जब when we are in गृहस्थ आश्रम, हमको 3 अपने डेट्स पूरे करने पड़ते हैं. एक भगवान को, एक सेजेस को, और एक अपने पितरों को, एंसेस्टर्स को. और ये सारे जो
डेट सम पे करते हैं, it can only be done through a son, not to a daughter. And therefore, women become not so important in this. A boy is very important to carry on, to pay the debts of a family. So even whether, brahmacharya mein, when you are in the brahmacharya ashram, where the person becomes a student, grahastha ashram, where he becomes a householder, vanapastha ashram, when he goes to the jungle, and finally the sannyas ashram, we find son जो है वो बहुत central है ये चारों आश्रम में. son जो है वो वर्ड है वो पूत से निकला है, पुत्र जो है पूत से निकला है. पूत जो है, ये पुत्र का मतलब who protects you from पूत. पूत जो है वो hell है, नरक से. जब तक आपका बेटा नहीं होगा आप नरक से नहीं बच सकते हो. एक फादर जो है अपने ऋण को अपने बेटे के ऊपर डाल सकता है, not on his daughter. तो ये पुरानी हमारी मान्यताएं चली आई हैं. विष्णु स्मृति में कहा है, थ्रू अ सन अ फादर कॉन्कर्स द वर्ल्ड, थ्रू अ ग्रैंडसन he obtains immortality, and through a son's grandson he gains the world of the son. आज हमारे देश में सेक्स रेशियो एक बहुत बड़ा इशू है. अगर आप देखें इतने अनवांटेड अबॉर्शंस होते हैं, इतनी गर्ल्स मिसिंग है, हमारे पास बहुत सारे लॉज हैं, प्री-कंसेप्शन एंड प्री-नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स 1994 जिसने बैन किया है. यू कैन नॉट आस्क द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड, बट इन स्पाइट ऑफ दैट देयर इज स्टिल अ प्रेफरेंस. हम गर्ल चाइल्ड को कैसे ट्रीट करते हैं? शी इज ट्रीटेड लेस देन अ ह्यूमन. पैदा होने से पहले ही डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो जाता, आप उसको पैदा ही नहीं होने देते हो. बहुत बीमार होती तो रिलक्टेंस है मेडिकल एड देने के लिए, उनको ब्रेस्ट फीड कम टाइम पे देते हैं और स्कूल से बड़े आराम से विड्रॉ करते हैं. तो जो हम जेंडर रोल्स की बात करते हैं वो एक बहुत कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ रिलेशनशिप में डेवलप होता है सोसाइटी, फैमिली में. तो ये जो लड़की ग्रो अप होती है ना, वो एक बहुत लो सेल्फ एस्टीम से ग्रो होती है. बहुत सारे प्रोवर्ब्स आप देखिए, मैं आपसे शेयर करूंगी एंड में पॉडकास्ट. मैंने केवल इंडिया के ही डिफरेंट रीजन्स के नहीं, वर्ल्ड में जो परसेप्शन है विमेन का उसके ऊपर भी बहुत कुछ लिखा है. तो पूरे वर्ल्ड में ये परसेप्शन है कि दे आर नॉट सो इम्पोर्टेंट. अ डॉटर इज लाइक घी, both are good to a certain point. If you do not dispose of them, they will start stinking. तो उसको घी से इक्वेट किया. आप जेनोसाइड्स के मैप्स देखिए, कितना ये बढ़ते जा रहा है. चाइना में, कोरिया में, also it is increasing. इंडिया में भी it is on the increase. अगर आप रेशियो देखिए, पहले अब हल्का सा थोड़ा इंप्रूव हुआ है रिसेंट ईयर्स, ये थोड़े पुराने डेटा है, बट यहाँ पे गुजरात, पंजाब, हरियाणा, these are the states जहाँ बहुत कम रेशियो था. पर 1000 मेल्स अगर आप देखें 1901 सेंसस में, फॉर एवरी 1000 मेल्स वी हैड 972 गर्ल्स. By 11 it became 964. देखो ये घटते जा रहा है, 955, 950, 945. केवल 1991 में जब हमने डिकेड ऑफ द गर्ल चाइल्ड ये सब सेलिब्रेट किया, थोड़ा बड़ा था 945, but now it has gone to 914 per 1000. For every 1000 boys born since 61, these are the number of girls that are born. आप proverbs देखिए, आप लोग सब different region से आते हैं, discussion में we will talk about it. क्या है, bringing up, तेलुगु की एक proverb है कि लड़कियों को पालना तो ऐसे है जैसे किसी और के बगीचे में पानी देना, और अगर तुम झूठ बोलोगे तो तुमको लड़की पैदा होगी. It is better to be born as a tree in a jungle than to be born as a girl. और अश्वमेध यज्ञ करना बहुत आसान है, जो सबसे मुश्किल यज्ञ माना जाता है, than to perform a daughter's wedding. तो ये इतने सारे proverbs हैं which tell you. आज हमने commodification of women कर दिया है पूरा, ग्लोबलाइजेशन के एडवेंट से. ब्यूटी इंडस्ट्री जो फैशन प्रोडक्ट्स चर्न करती है एट अ लार्ज स्केल, उन्होंने ब्यूटी को एक कल्ट बना दिया है, और विमेन को हम केवल एक सेक्स ऑब्जेक्ट के रूप में प्रेजेंट करते हैं. चाहे आप फिल्म्स देखें, मीडिया देखें, टेलीविजन देखें, वेरी फ्यू डू वी शो विमेन एज बिल्डर्स, अचीवर्स एंड लीडर्स, एंड विमेन बिकम्स रिडंडेंट बियॉन्ड लुकिंग गुड. मीडिया में भी आप देखिए, अगर सारे विमेन के पेजेस मैगजीन्स में होते हैं, न्यूज़पेपर्स में होते हैं, बट इवन उनके बारे में जब न्यूज़ है, it is only when a man is presenting it becomes an authority.
नहीं तो हम उनको बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं. बाय एंड लार्ज दे आर इग्नोर्ड, मीडिया इग्नोर करती है. अब आप खुद देखिए, टेलीविजन में देखिए किस तरह दिन पर दिन औरतों के कपड़े छोटे होते जा रहे हैं, द वे दे एक्सपोज देयर बॉडीज, मेन आर बीइंग प्रॉपरली ड्रेस्ड एक्सेट्रा. कितने जेंडर स्टीरियोटाइपिंग्स है हमारे मीडिया में. देखिए कि मेल विल बी वेरी गुड chef outside, but at home it is the wife who will cook. You mean she can open it? So एक सबसे बड़ा जो इशू है वो जेंडर वायलेंस का है. आज मैं जब बात कर रही हूँ, आप लोगों को सबको मालूम है कलकत्ता में क्या हुआ है. उसके अभी तक वो विशाखा, वी हैड विशाखा रेप केस, फिर हमारा दिल्ली में जो हुआ था निर्भया केस, ये एक तीसरा आया है. और इतना एंगर है लोगों के बीच में. तो जेंडर वायलेंस इज अ डे टू डे रियलिटी. इट लीड्स टू सो मच हार्म फॉर अ वुमेन. लेकिन हम इतना इम्यून हो गए जब तक कुछ ऐसा केस नहीं हो कि ये केवल एक स्टैटिस्टिक्स रहता है. आज आप देखिए पूरी फैमिली में, सोसाइटी में वायलेंस है. इट कट्स अक्रॉस लाइंस ऑफ इनकम, क्लास, रिलीजन एंड कल्चर. और मेन रीजन इसका क्या है? अनइक्वल पावर रिलेशनशिप जो एक फैमिली में है, जो हमारी डॉक्ट्रिन है प्राइवेसी की, आवर नोशन ऑफ सेक्सुअलिटी, कल्चरल आइडियोलॉजी, ऑल दिस लीड्स टू वायलेंस. अगर आप वायलेंस के फिगर्स देखें, ये जो डार्क ग्रे एरिया है ये ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स है. इसके ऊपर रिपोर्टेड वायलेंस है. अगर आप सर्वे करते हैं तो आपको इतना मिलेगा डेटा, लेकिन जो रियल वायलेंस है वो सबसे ऊपर वाला सर्कल है. तो हम वहां तक तो हम पहुंच ही नहीं पाते हैं. जिस पे हम बात करते हैं वो केवल ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स है, जो बहुत कम नंबर है, बिकॉज मेनी वुमेन डोंट इवन रिपोर्ट. सबसे ज्यादा वायलेंस जो है वो एशियन कल्चर्स में है. क्यों? क्योंकि हमने मैस्कुलिनिटी को विमेन के एक्सपेंस पे डिफाइन किया है. एशिया में हम ये मान के चलते हैं कि आदमियों की इज्जत औरतों में बसती है. एंड क्या होता है जब कोई कास्ट वॉर होता है, गांव में कुछ कम्युनल वायलेंस होता है, सबसे पहले वुमेन को वो करते हैं. पार्टीशन में क्या हुआ था? हिंदू आदमियों ने मुस्लिम औरतों को रेप किया, उनके बॉडी पार्ट्स काटे. मुस्लिम आदमियों ने हिंदू वुमेन को मारा, रेप किया. व्हाई? दे वांटेड टू सेंड अ लेसन टू दैट कम्युनिटी, Hindu community or Muslim community, that you are not man enough to protect your women. तो उनको अपनी इज्जत बचानी है तो they have to protect their women. और पूरे एशियन कल्चर्स में बहुत कम women के पास प्रॉपर्टी राइट है. जिस तरह हम लड़कियों को बड़ी होती हैं वो बहुत इनइक्वालिटी सीखती हैं. अपर क्लास डोमिनेंस एंड कैपिटलिज्म हैज लेड टू मोर वायलेंस. आज आप देखिए सब जगह, होम, स्कूल, वर्क प्लेस, पब्लिक प्लेस, इवन साइबर स्पेस में. आई वॉज पार्ट ऑफ सो मेनी सेक्सुअल हैरेसमेंट कमिटी. अब साइबर स्पेस में वायलेंस बढ़ गया. सब जगह यू सी इट. वायलेंस का मतलब केवल ये नहीं है कि आप एक औरत को मार रहे हो. इट हैज एज अ सोशल साइंटिस्ट वी हैव टू एग्जामिन द इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल कॉस्ट. एक इंस्टीट्यूट है इकोनॉमिक एंड पीस, IEP, उसने सर्वे करके बताया है कि एवरी ईयर वायलेंस कॉस्ट 14.76 ट्रिलियन, जिसका मतलब 1,48,811 रुपीज. अगर हम उसको रुपीज में डालें, हम पॉवर्टी से बढ़ने की बात करते हैं. जब तक वायलेंस रहेगा ये नहीं होगा, क्योंकि जब वायलेंस होता है तो उससे क्या होता है? हेल्थ सिस्टम में इफेक्ट होता है. women has to go get treated, and then if she wants to separate from her husband, legal cost होते हैं lawyers के. और अगर वो काम पे नहीं जा पाती है तो इकोनॉमिक लॉस होता है, एम्प्लॉयर को भी, एम्प्लॉय को भी. तो ये सारा कैलकुलेट करके वायलेंस का एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक कॉस्ट है. इसका सोशल कॉस्ट भी है, क्योंकि हम फैमिली को इतना प्रमोट करते हैं एज अ वायबल इंस्टीट्यूशन. ये थ्रेटन होता है. अगर जिस फैमिली में women are beaten, वहां पे हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, साइकोलॉजिकल, they cannot enjoy their rights, and it limits women's decision about reproduction, health outcomes, etc. So, if women continue to be beaten, they have lack of control over resources. इसका political cost भी होता है. हम politics में empowerment की बात करते हैं, लेकिन जिस society में violence होता रहेगा, there will be no empowerment. पहले हम लोग सिक्योरिटी की बात करते थे, तो जब हम वर्ल्ड में ह्यूमन सिक्योरिटी की बात करते थे 1994 से पहले, वी वुड ओनली टॉक ऑफ टेररिज्म, स्टेट टेररिज्म, इंटरनेशनल टेररिज्म, स्टेट बॉर्डर टेररिज्म.
बट 1994 में यूएनडीपी रिपोर्ट ने पहली बार बताया कि ह्यूमन सिक्योरिटी हैज टू बी द फंडामेंटल गोल ऑफ डेवलपमेंट। हमको सबसे पहले अपनी फैमिली में सिक्योरिटी लानी है, एंड ओनली देन वी कैन टॉक इन टर्म्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। और पूरा डेमोक्रेटिक प्रोसेस तभी स्ट्रेंथन होगा जब वायलेंस हट जाएगा। सो वी हैव टू बी वेरी क्लियर दैट वायलेंस हैज टू एंड। आज हमारी सोसाइटी में क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं? आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड, एक बोरिस लॉकर रूम कंट्रोवर्सी हुई थी। ये एक इंस्टाग्राम ग्रुप बना था, इसमें यंग लड़के 16-17 साल के थे, साउथ दिल्ली के एक बहुत पॉश वाले स्कूल में थे। ये लोग क्या करते थे, अपने क्लासमेट्स की, अपनी टीचर्स की फोटो बिना उनकी परमिशन के डाल देते थे। उनको दे वुड बॉडी शेम देम, स्लट शेम देम। आजकल दे वुड डू लॉट ऑफ चेंजेस। और जो उनके डिस्कशन होते थे ये लड़कियों की बॉडीज को लेकर के, ऑल दैट चैट वाज रिवील्ड एंड इट वाज ओनली अ टिप ऑफ द आइसबर्ग। ये हमारी सोच है, हमारे यूथ की, और जो इतने वेल टू डू फैमिली से आते थे, इतने अच्छे बैकग्राउंड से आते थे। आई डोंट नो आप लोगों ने कितनों ने ये फिल्म देखी है, कबीर सिंह। एक बॉक्स ऑफिस हिट थी 2019 की, और अभी भी कोई मैंने तो वो देखी नहीं, हिम्मत ही नहीं की। कोई बोल रहा था एक और एनिमल फिल्म आई है, वो भी इट इज ऑलमोस्ट ऑफ द सेम। ये सारी फिल्म बॉक्स ऑफिस हिट हो जाती हैं। शाहिद कपूर और कैरा अडवाणी वाली, संदीप बंगा ने इसको डायरेक्ट किया था। 379 करोड़ इट क्रॉस, 10th हाईएस्ट फिल्म। इसका हीरो कौन था? है तो वो डॉक्टर, लेकिन ही इज अ ड्रग, हाँ, ड्रग एल्कोहलिक है, ऑप्रेसिव है, ही सफर्स फ्रॉम हार्ट ब्रेक। और वो किस तरह ट्रीट करता है, he goes to the class and says this girl belongs to me, कोई उसको नहीं छुएगा। और ये क्या थी, एक तेलुगु फिल्म की रीमेक थी। इसने 51 करोड़ बॉक्स ऑफिस पे कमाए थे। और ये तेलुगु फिल्म जो थी वो तमिल फिल्म की एक रीमेक थी, आदित्य वर्मा। इट ग्रॉस 250 करोड़। तो हम क्या मॉडल्स अपने सोसाइटी के आगे रख रहे हैं? वी आर हीरो वर्शिपिंग दीज पीपल। ये बोलते तो हैं, ये सारी कहानियां क्या हैं? दे आर लव स्टोरीज। लेकिन अगर आप उसको देखें, ये क्या है? दे आर अ मिक्स ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट, मोलेस्टेशन, कोअर्शन, और एक बहुत एब्यूसिव रिलेशनशिप की बात करते हैं। हर डायलॉग वो फिल्म का एक डिमीनिंग है विमेन के लिए। मैंने ना इस पे डिटेल में लिखा है, आई विल शेयर विद यू, यू कैन लिसन टू दैट पॉडकास्ट। तो सॉरी टू इंटरप्ट मैम, या बट बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे लड़कों ने इसको बहुत फॉलो किया, बहुत ट्रेंडिंग में बहुत सारी चीजें चली उसको देख के, बट लड़कों ने बिहेव भी किया उस तरीके से। तो ये बहुत अपने आप में शर्मनाक है। सिनेमा इज अ मिरर ऑफ द सोसाइटी, बट व्हाट आई प्रोसीड। Definitely, we'll have a lot of discussion. Let me finish at the end. नहीं तो हम yes मैम, वो अल्फा पर्सनैलिटी को लेके लोग इसको ज्यादा। चलिए सुनिए, मेरे को पहले खत्म करने दीजिए, then we'll have a discussion. मैं ट्राई करूंगी। ओके मैम, ओके मैम। क्लास कब तक के लिए है? क्लास कब तक के लिए? 12:15। 12:15. I'll try to finish it so that we can have it. तो ये इस तरह के हम अपने मॉडल्स अपने सामने रख रहे हैं। मैंने कमोडिफिकेशन की बात की है। एक क्या है, एक बिल्कुल कल्चर ऑफ साइलेंस है। अगर विमेन को मारा जाता है तो वो सोचती है ये नॉर्मल है, इनएविटेबल है, देयर इज नथिंग शी कैन डू टू हर लॉट। और साउथ एशिया जो है वो वर्स्ट सिनेरियो है। इसको हम इससे कहते हैं कि ये बायस जो है वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी में है। सारे डेवलप्ड कंट्रीज में बिकॉज ऑफ देयर बायोलॉजिकल स्टर्डिटी विमेन live 7 years more than men, and South Asia ये केवल 1 year है, which is the worst in the world. So it shows the bias. ये मेरी 2 किताबें हैं which we did, Gender and Structural Violence, Gender and Violence. एक बहुत बड़ा इश्यू ट्रैफिकिंग का है। ट्रैफिकिंग का मतलब जहां पे आप फ्रॉड से, फोर्स से, चीट से वो वुमेन को सेक्स में धकेलते हो। और आज बहुत डिस्कशन है, आपको एग्जैक्ट फिगर्स नहीं मिलेंगी, लेकिन सबसे ज्यादा मनी वर्ल्ड में है वो आर्म्स ट्रेड से आता है, ड्रग्स ट्रैफिकिंग से आता है, और ये विमेन ट्रैफिकिंग से भी बहुत ज्यादा पैसा आता है। लेकिन डिफरेंस ये है, अगर आप आर्म्स में पकड़े गए, ड्रग्स में पकड़े गए तो आप जेल में जाते हो, लेकिन
ट्रैफिकिंग में जो आदमी इसको पुश करता है, ट्रैफिकिंग में, ये औरत को प्रोस्टिट्यूशन में, वो नहीं जेल में रहता, बट ये औरत को जेल में डाल देते हैं. दैट इज द डिफरेंस. आज ये एक मेजर इश्यू हो गया है, डिस्ट्रिक्ट क्रॉस बॉर्डर. ये मेरी किताब है ऑन सेक्स ट्रैफिकिंग इन साउथ एशिया. यू कैन रीड इट फॉर डिटेल्स. मैंने अपनी किताब में बताया कि एक लड़की से 10 लोग कमाते हैं. सबसे पहले एक स्पॉटर होता है गांव में. ये कोई अनजान आदमी नहीं है, अनजान औरत नहीं है. ये कोई शहर से वेल ड्रेस्ड आंटी है, कोई अंकल है जो उनको प्रॉमिस करता है बेटर जॉब का. एक रिक्रूटर, बायर, सेलर, ट्रांसपोर्टर, हार्बर, फाइनेंशियल, ब्रोकल कीपर, पिम्प, क्लाइंट, इतने सारे लोग उस लड़की से कमाते हैं. ट्रैफिकिंग आज कहाँ नहीं है? लेस डेवलप्ड कंट्री से मोर डेवलप्ड कंट्रीज में आप you will always see a migration from a lesser developed state. India में you get women from Pakistan, East Asia, Sri Lanka, Afghanistan. तो ये is she a victim or an accused? जो ये लड़की इसमें जाती है, she is powerless, helpless, choiceless, debt bonded, she is enslaved, she is raped, abused and exploited. इंडिया में ट्रैफिकिंग और इजी हुआ क्योंकि हमारे पास कुछ ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ प्रोस्टिट्यूशन थे. अगर आप देवदासी प्रथा को देखो, टिल 18th century these are very rich women. मैंने काफी इंस्क्रिप्शंस देखे हैं 10th century से 17th century तक. These are very powerful women. पैसा है इनके पास, looks हैं, they are illiterate, they owe a lot of wealth. बट जब ब्रिटिशर्स आए, टेम्पल लॉस्ट देयर पैट्रोनेज. एंड पहले भी करती होंगी कुछ प्रोस्टिट्यूशन में, बट 1947 के बाद एवरीवन वेंट इनटू प्रोस्टिट्यूशन. ये किताब है मेरी, देवदासीज फॉर साउथ इंडिया. It has been written with a student of mine, Jeevananda. Excuse me, ma'am. I think your slide is not moving. Not Oh God. moving, ma'am. बहुत देर से नहीं मूव कर रहा है मैम. अरे पहले बोलना था ना. ये मैं ना बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन ये फिर मूव नहीं करता. कब से ये देखे आप लोगों ने? यहाँ से देखा है? नो मैम. No, ma'am. कुछ भी नहीं देखा. ट्रैफिकिंग की मैं बात कर रही हूँ, तो ये मेरी किताब है सेक्स ट्रैफिकिंग पे. ठीक है, तो ये मैंने बताया था कि 10 लोग कमाते हैं वो लड़की से. ये सारे एरियाज जहाँ ट्रैफिकिंग होती है, ये विक्टिम और एक्यूज्ड है. कैन यू सी माय स्लाइड्स मूविंग? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, Yes, तो ma'am. ये ma'am. हमारे पास Yes, ना ma'am. ट्रेडिशनल इंडिया में ट्रैफिकिंग और इतना इजी है क्योंकि ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ प्रोस्टिट्यूशन है. और ये मेरी किताब है जो मैंने एक स्टूडेंट के साथ लिखी है, देवदासीज पे. हमने सारे इंस्क्रिप्शन देखे हैं और मैंने आपको बताया कि किस तरह से पहले टेम्पल में इनके पास इतनी इज्जत थी, इतने प्रोटेक्शन थे, लेकिन बाद में ये लोग जब प्रोस्टिट्यूशन में चले गए तो इट इज वेरी इजी टू पुश देम इनटू ट्रैफिकिंग. सेक्सुअल हैरेसमेंट अगर आप देखिए हर जगह, ऑफिस में, बाहर प्लेसेस में, before we gave it a name, it was just called life. कि oh, you are born a girl, you have to deal with it. जब हम लोग यंग थे, 16-17 साल के थे, कोई टर्म नहीं था सेक्सुअल हैरेसमेंट. कोई भी लड़का आके आपको छेड़ देगा, कुछ भी बोल देगा, कोई भी आपको टच करके चला जाएगा, आप कुछ नहीं कर सकते थे. पहली बार 1978 में लिन फेरले ने किताब लिखी सेक्सुअल शेकडाउन, वेयर शी इंट्रोड्यूस्ड दिस टर्म. 1979 में कैथरीन मैकिनन ने एक और बुक लिखी, द सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वर्किंग वुमेन. इसके बाद हमने 78-79 के बाद लेजिस्लेशन आया. इंडिया में आपको सबको मालूम है भावरी देवी का केस है, वेयर ये एक गवर्नमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम में सोशल वर्कर थी, भतेरी विलेज राजस्थान में काम करती थी. तो ये एक दलित समुदाय से आती थी और एक राजस्थान में आपको मालूम है बहुत सारे चाइल्ड मैरिजेस होते हैं. तो इसने एक अपर कास्ट फैमिली के पास जाकर के उनके जब लड़के की शादी हो रही थी तो उसको रोकने की कोशिश की, क्योंकि ये इसका काम था. तो वो लोग इतना गुस्सा हुए कि एक दलित, और वो भी इनकी शादी को रोक रही है, शी वॉज मोलेस्टेड, रेप्ड, और उसको इन्होंने बाहर फेंक दिया. तब विमेन्स ऑर्गेनाइजेशन ने जाकर के एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल किया, which was later on called Vishaka versus State of Rajasthan. और इसकी वजह से 13 अगस्त 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने एक विशाखा गाइडलाइंस ले करी और 2013 में ये एक एक्ट बन गया, लॉ बन गया
the sexual harassment of women at workplace, prevention, prohibition and redressal. और ये अब एक it's a legal term and it is recognized by law. लेकिन आज इंडिया में लॉ होना ही सब कुछ नहीं होता. There is so much of a difference between what is happening in reality and what is there. आप हमारी फिल्म्स को देखिए, इन्होंने एक बहुत बड़ा मिथ क्रिएट किया है एंड दे हैव ओवरलुक्ड इट. इसको बड़ा नॉर्मल सा बता करके कि उसका मतलब ही चेंज कर दिया है. आप देखते होंगे ना फिल्म में कि बहुत सुंदर लड़की है, हीरोइन है, वो सबसे ज्यादा पॉपुलर है. They keep pestering her, hero keeps pestering her, she's not interested, she keeps saying no 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 no. लेकिन इस तरह से दिखाते हैं कि फाइनली वो yes करके she falls in love. और ये एक बिल्कुल नॉर्मल फ्लर्टिंग दिखाया जाता है, बहुत नेचुरल है. मुलायम सिंह ने क्या कहा था पार्लियामेंट में, लौंडे तो लौंडे ही रहेंगे. तो you are not recognizing how serious it is. You think it is normal male flirting. और इस तरह से डिपिक्ट किया है कि women enjoy eve teasing and harassment, and women are asking for it by wearing clothes. Women who are single, divorced, they can easily be harassed, and they try to show in film that she is very popular. लेकिन reality क्या है? हम सोचते हैं sexual harassment harmless है और women who object to it have no humor. But reality is you are belittling women. You are showing women as Eve's temptress. And बहुत से लोग कहते हैं कि it's a problem between two people. But it is a public problem. Unless we recognize it as a public problem, which we have done now, we cannot find public solution to it. एक बहुत बड़ा myth है कि prostitutes को नहीं harass कर सकते हैं, sexually harassed. But continuously they are harassed by police, middlemen, clients. और ये जैसे मैंने बताया मुलायम सिंह का कि ये बिल्कुल नॉर्मल एक्सप्रेशन मेल फ्लर्टिंग है. बट रियलिटी इज इट इज एन असर्शन ऑफ पावर. आप पावर दिखा रहे हैं कि आप इतने पावरफुल हैं, दैन एन एक्सप्रेशन ऑफ सेक्सुअलिटी. और ये दिखाया जाता है कि इट इज women enjoy sexual harassment. It shows how popular they are. But the reality is it is very humiliating and degrading. बहुत सारे Me Too movement में क्या हुआ था? बहुत सारे लोगों ने कहा oh these women are using sex to go ahead and now they are complaining. उस समय जो भी ये लड़कियों ने कंप्लेन किया वो बहुत यंग थी, वो एंटर कर रही थी एरिया में. They were exploited. उनके पास पावर नहीं थी. They did not want to lose their jobs. But later on when they became powerful they complained. Sexual harassment का कितना impact होता है? Nobody has really assessed it. It becomes very, workplace becomes hostile to women. अगर आप sexist remark करते हैं, pornography display करते हैं, graffiti, it belittles a women. And women has to either quit her job or protest or she loses her job. बहुत सारे psychologists ने इसको एक psychological rape की वो दी है परिभाषा, क्योंकि इसमें that women goes through a lot of nervousness, self-esteem, confidence, humiliation है, guilt feeling है, और women हमेशा अपने को blame करती, maybe I am the reason. Women की mobility restrict होती है, she cannot use public transport, she cannot go late night shift. एक बहुत बड़ा movement हुआ था, take back the night. Why is it that रात को औरतें नहीं जा सकती, safe places नहीं है? इसमें क्या है, victim को आप wrong doer कर देते हो, slander her morals. तो ये बहुत myth and reality इतना difference है इसमें. अब मैं पॉलिटी की बात करती हूँ. आज हमारे देश में हमने बड़े आराम से तो 73rd 74th अमेंडमेंट में विमेन को पॉलिटिकल पावर दे दी है पंचायत में. बट आपको मालूम है विमेन्स रिजर्वेशन बिल कितने साल लगे और आज तक अभी नहीं मिला है. वो ये गवर्नमेंट ने थोड़ा बोला है बट स्टिल इट वाज नॉट attained now. It will come in the next election. क्यों? पार्लियामेंट में अगर विमेन पहुंचेंगी तो they will be the law makers. वो बट पंचायत में तो आपको खाली लॉ फॉलो करना है. You cannot make the law. You just have to implement it. और वहां पे आप बड़े खुश हैं. You can give rights to women, but not when they have to make. आज आप पूरे रिप्रेजेंटेशन देखिए, कितने पॉलिटिकल पार्टीज विमेन को टिकट्स देती हैं? बहुत कम है. 11% लोकसभा में, 10% राज्यसभा में. इंडिया इज 108th among 188 कंट्रीज. कितने विमेन पार्लियामेंटेरियंस है वहां पे? वर्क को आप देखिए,
यूएनओ की स्टैटिस्टिक्स है कि 50% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन वर्क इज डन बाय women. 2/3 of the work is done by women, and they make up 2/3 of the world's illiterate population. Women own less than 1/100th of the world's property, and they are 70% of the poor in the world. अगर आप देखें, more women are in unorganized sector than the organized sector. Organized sector में तो rules regulations है, you have to follow them. Unorganized sector, it doesn't have any rules regulation. और अगर आप statistics देखिए, 71 में 94% थी, 96% बढ़ गई है 2001 में. और यहाँ पे they continue to be invisible economic statistics, and therefore they are ignored by legislators and planners. Health को आप देखिए, it is regarded as 10:90 gap. Women suffer from 90% of the diseases, but only 10% is spent on their money. ये अमृता सेन ने और उनके दोस्त ने एक hospital records पढ़े थे, and they claim that women come to the hospital only when they are serious. So there is very little attention which is paid. Now the biggest problem which we have faced in recent times is COVID. All of us know how our world turned upside down. 31st December 2019, we discovered it in China, in Wuhan province, और उसको एक WHO ने declare किया था. धीरे धीरे from China it spread to so many countries world. हमने सब इसका impact देखा है. इंडिया में 3 waves में कोरोना वायरस आया था. First wave सुनामी की तरह था, April 23rd to 2021, 15.9 million with 1,85,000 deaths हुई थी. Second wave immediately इसके बाद, इसमें थोड़ा mutation हुआ था, less transmission था, but again third wave was dangerous. एक panic आ गया था, variants reached Delhi, Mumbai, Calcutta. और एक हमको नया behavior कि COVID appropriate behavior, CAB क्या है, हमको सीखना पड़ा. मास्क पहनना पड़ा. आज फिर इतने दिनों के बाद अगर हमसे बोलो कोई मास्क पहने तो कितना अनकंफर्टेबल होता है. But that time all of us were wearing mask public places में, और it was a sharp rise. But इसका impact women पे क्या हुआ? कोई भी पैंडेमिक जो है वो जेंडर इक्वालिटी में चेंज लाती है. और इंडिया में अगर आप देखिए, वर्ल्ड में, फॉरगेट इंडिया, सब जगह देयर इज नो इक्वालिटी. 85 स्टेट्स में कभी कोई फीमेल हेड नहीं रही है. इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन को अगर हम देखें, 2019 रिपोर्ट बताती है कि दुनिया में अगर हम इक्वालिटी लाएंगे हमको 257 years लगेंगे टू क्लोज दिस गैप. ग्लोबली ओनली 55% ऑफ द वुमेन 15 से लेके 64 years में लेबर मार्केट में एंगेज है. इसके अगेन 78% मेन हैं. और 72 कंट्रीज आज भी ऐसे हैं जहां वुमेन एक बैंक अकाउंट नहीं खोल सकती है. और सबसे ज्यादा वर्ल्ड में अगर आप देखें, अनपेड वर्क जिसके कोई मुआवजा नहीं मिलता है, कुकिंग, क्लीनिंग, टेकिंग केयर ऑफ द चिल्ड्रन, टेकिंग केयर ऑफ एल्डरली, सब इसको जो हम केयर वर्क कहते हैं, वो सबसे ज्यादा अनपेड वर्क वर्ल्ड में विमेन करती हैं. तो ऐसा जब वर्ल्ड में सिनेरियो, पैंडेमिक ने आके और भी इसको बिल्कुल चेंज कर दिया. आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दैट नाउ. पूरी जो लैंग्वेज थी हमारी एपिडेमिक में, ये बहुत जेंडर्ड थी. जब हम बात कर रहे थे, इट इज लाइक अ वॉर, बैटल. जब हम वॉर और बैटल की बात करते हैं तो ये पूरा मैस्कुलिन वर्ल्ड ऑफ रिवेंज, ब्रेवरी, विक्ट्री, वायलेंस, डिसीजन मेकिंग सारे हमारे सामने आता है. जब हेड ऑफ द स्टेट refers to himself as the head of the family, तो हम फैमिली को वैसे नहीं देखते हैं कि एक इक्वल रिलेशनशिप वाली फैमिली है, where there is respect, mutual empathy. It is one person who is controlling all the power and decision making. बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने दिए उस समय, रामायण से, महाभारत से. और ये जब रामायण में जो लक्ष्मण रेखा की बात की है, विमेन ने तो ऑलवेज एक्सपीरियंस किया. पहली बार मेन एक्सपीरियंस्ड कि लक्ष्मण रेखा क्या होती है. आपको घर में रहना, आप मूव नहीं कर सकते हो.
And this was, जो private और public का जो एक first time it fused. इससे पहले, men were in the public sphere, women were in the private sphere. तो एक, जो पूरी imagery जो थी, it was very male centric. लेकिन सबसे ज्यादा जो impact हुआ था कोरोना का, it had a lot of impact on jobs. एक family में अगर दोनों job lose कर रहे हैं, तो definitely, the man would continue, the women left her job to take care of other things at home. और इससे एक और, सारा, एक तो jobs loss हो गए, schools बंद हो गए, colleges बंद हो गए, nurseries बंद हो गई, maid servants नहीं आ रही थी. How much workload increase for women? अगर इसकी, मैंने इस पे भी काफी कुछ लिखा है कि कितना unpaid work women का increase हो गया. Women who were working from home, I'm sure there are so many women in this course. आप घर से काम कर रही हैं, लेकिन आपके घर के दायित्व तो रहते ही हैं, बच्चे भी घर पे हैं. How do you really continue your work? It is not the same for both men and women. It is a different world. Child care की ज्यादा से ज्यादा responsibility women पे आ गई. When there are no maids to take care of the children, elder people के पास आप भेज नहीं सकते दादा दादी नाना नानी के पास, क्योंकि एक वायरस का fear था, and you had to take care of the child and continue your daily work, and then also, work from home. So it had a lot of impact on childcare. Schools, look at, more than 157 crore students in 191 countries stayed at home. COVID-19 से 32 crore students India में hit हुए according to UNESCO statistics. And it really impacted women. World का आप मैप देखिए उस समय कोविड के टाइम में, जितने भी डार्क रेड एरियाज है वहां पे सारे स्कूल्स क्लोज हो गए थे. कोविड का इतना इम्पैक्ट था. सेकंड, सेलेक्टेड एरियाज में, कुछ लिमिटेशंस में आपने येलो में दिखाया है. सो द होल वर्ल्ड इज समथिंग विच वाज अफेक्टेड बाय कोविड. बट सबसे ज्यादा जो इसका इम्पैक्ट हुआ है वो डोमेस्टिक वायलेंस पे हुआ है. पूरे वर्ल्ड में डोमेस्टिक वायलेंस इंक्रीज हुआ इस पीरियड में. कोविड के टाइम में क्या स्लोगन था? स्टे होम एंड स्टे सेफ. अनफॉर्चुनेटली होम इज नॉट अ सेफ प्लेस फॉर ऑल द वुमेन. जब आदमी घर में है, दे आर नॉट गेटिंग देयर लिकर, समटाइम्स एब्यूजिव रिलेशनशिप है, husbands are insecure, they don't know what job they will have, so they easily beat their women. क्योंकि what is violence? I have already mentioned it's power relationship between the two. And the rise of, violence increase. National Commission of Women ने एक alarm grow किया था. Sorry, before उसने एक WhatsApp नंबर भी दिया था कि आप इसमें रिपोर्ट करिए अगर वायलेंस होता है. एक महीने के अंदर they got more than 40 messages. And statistics है, more than 250 cases of violence increased. तो जब ये इतनी insecurity है, इतनी uncertainty है, violence against women increase. Now, when we talk of women's issues, it does not just mean women. Men have also to play a very important role. Today we recognize that unless men are involved, we cannot have gender equality. आज सारे वर्ल्ड में लोकल प्रोग्राम्स हैं, जो भी हैं, whether we are talking of reproductive health, violence, prevention, all that has parenting, men are involved. Because, जैसे मैंने बताया, men are always conscious. शुरू से, जब women के पास इतने rights नहीं थे, इतने, they didn't have so much freedom. It was the men who took up these issues. And then slowly, second level of leadership came. So women have always, men have lived in families with their mothers, sisters, daughters. So they are aware of it. We need to really, bring it more at the center. If we exclude men from any discussion of gender sensitization, we cannot bring about a positive change. Because, you can't say that, okay, we are talking of gender sensitization and only we will talk to women, women are the one. It is the men and women who have to work together. More has to come from men if they want to bring about a change. Because, like I said, men have always led gendered life. They have lived in families. And,
That kind of a freedom you should give to your daughter. Teach your son. एक बड़ा इंटरेस्टिंग किसी ने व्हाट्सएप में वीडियो भेजा था कि वो लड़की तैयार होके कहती है कि मैं पार्टी में जा रही हूँ, तो उसका भाई कहता नहीं जाओगी, बाहर का माहौल कितना खराब है। तो उसके फादर आके बोलते हैं कि तुम कह रहे हो बाहर का माहौल खराब है तो नहीं जाएगी, और तुम जा रहे हो। माहौल खराब कौन करता है? तुम करते हो, इसलिए तुमको घर में रहना चाहिए, एंड women should go out. That is a reality. So we have to really understand that you have to include more and more men in gender sensitization. Men have to be responsible for change, and we have to recognize that if we bring about equality, it will benefit both men and women. And why we have to involve men? Because they have always been part of policies and practices in developmental work. And when when men are speaking, people will listen. And if they are gender sensitive, it will make a lot of difference. And therefore, we cannot really avoid men from being involved. What is important is today we need to shift our approach. When we talk of gender sensitization, you look at, सबसे पहले हमने development की बात की थी, look at our 5-year plans. फिर हमने feminist point of view से बात की थी. Then we spoke of women's advancement. अब हम empowerment की बात कर रहे हैं. तो जब हम advancement और development की बात कर रहे थे, we were only talking of economic development. My slides are moving. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. So when we were talking of advancement and development, we were only talking of economic development or population policy. But today, international community has recognized that empowerment and autonomy are very important if we want to improve the status of women in political, social, economic condition. So we have to really shift our approach to a human rights approach, concern of women. Now, ये जो situation है, इसमें हम किसको blame करें? Do we blame the men? Do we blame the women? Or do we blame both men and women? I think we are asking the wrong questions. Instead of asking whom should we blame, we should ask what is to be blamed. तो जब हम what की बात करते हैं, तो then it will lead us to an analysis of patriarchy. Patriarchy कैसे function करती है, how it results in society, capitalist mode of production relation, division of society in terms of social economic groups, caste, class, religion, how it impacts gender relations. And we have to understand that, the socially governed, patriarchal, bound social norms, and then we will be able to deal with it. चाहे आप जितने भी gender के construct हैं, they come across a lot of challenge. Gender mainstreaming is a main issue. आपको हर issue में gender mainstreaming लाना है. And we have to really bring about a gender sensitization. Everyone has to change their attitude. We have to recognize women and men as both human beings, equal human beings. And this whole notion of one is superior, one is inferior has to be really given up. And society जिस तरह से dictate करती है, family, society, media, the kind of images that we portray, and most of the boys and men internalize it. So what is important is we need to recognize the whole changing context, understand with empathy the gender roles and divisions, and only then our attitudes and behavior will change. And all institutions, family, society, education, state, market, media, religion, culture, literature, everyone has to work together. There has to be a multi-pronged approach. जितने भी institution socialization में main part play करते हैं, they have to all get together. And सबसे पहले हम ये bias, all of us have that bias. 5000 साल से, जो मैंने आपको एक example दी थी कि they pray to sun, oh God, give us a son here and a daughter elsewhere. 5000 साल का bias इतनी जल्दी तो नहीं जाएगा ना. तो ये सारा bias based on gender, sexuality, age and race, ये हमारे inbuilt हैं. सबसे पहले हमको admit करना है कि ये bias है. We have to examine ourselves. और जब एक बार हम अपने आप को एग्जामिन करेंगे, we will take the right steps.
We have to expose ourselves to different experiences and raise awareness. So therefore, gender equality एक reality तभी बनेगी जब हम values change करेंगे अपने society में. कहाँ से हम begin करते हैं? ये बहुत अच्छा है कहना कि society में होगा, international level पे होगा. We have to start with the individual. हमको एक pledge करना पड़ेगा कि हम immediate action में, private में, public में, we will protect this. मेरी बहुत जब स्टूडेंट से डिस्कशन होती तो शुरू में लड़के बोलते थे मैम आई विल नॉट टेक डाउरी, बट इफ माय पेरेंट्स टेक व्हाट कैन आई से, आई कैन नॉट टेल एनीथिंग टू देम. देन दे से ओके मैम लेट द गर्ल्स डिसाइड, इट इज देयर इश्यू. तो सबसे पहले आई टेल देम दीज आर नॉट गर्ल्स इश्यूज और विमेन्स इश्यूज, दीज आर सोसाइटीज इश्यू. आज आप बड़े आराम से कह रहे हो कि लड़कियां डिसाइड करेंगी, कल जब तुम फादर होकर के अपनी लड़की की शादी करोगे तब उस समय ये किसका इश्यू होगा? तुम्हारा इश्यू होगा कि ये women का इश्यू होगा? So we have to recognize that women's issues are nothing but society's issue. We need to start from ourselves, change our values, teach our girls to break that silence, teach our boys to respect the notion of equality, and only then will we be able to bring about a gender just society. Thank you. Thank you, ma'am. 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 Now we can have a Thank you, discussion. ma'am. Thank you. Now we can have a discussion. Yeah. Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. We can have some discussion. We have 20 minutes. Yeah. Yes, ma'am. Please introduce yourself. कहाँ पढ़ाते हैं? क्योंकि ना मैं केवल एक लैपटॉप के सामने बोल रही हूँ तो I would like to see faces. ठीक है? सर मैम मेरा नाम शैलेश कुमार प्रजापति है और मैं कुशीनगर में एक डिग्री कॉलेज श्री भगवान महावीर डिग्री कॉलेज में पढ़ाता हूँ, समाजशास्त्र का शिक्षक हूँ. और मेरा इससे मानना है कि मैम ये जो जैसे सोशलाइजेशन की जो बात है, ये प्राइमरी स्टेज, जैसे आपने बात कही कि बच्चा भी जन्म नहीं लिया तभी से ये शुरू हो जाता है भेदभाव. उसके बाद जो अर्ली प्राइमरी स्टेज पे जो प्रोसेस शुरू होता है सोशलाइजेशन का, इसमें माँ बाप का रोल मेन है. और यहाँ से ये लोग चेक बैलेंस करे तो शायद धीरे धीरे आगे चलकर 25-50 वर्षों में कुछ कम हो सकता है. लेकिन शुरुआत यानी चेक करने की जरूरत यहीं से है. और दूसरी जैसे कोलकाता की जो घटना है मैम, इसमें मुझे एक फैक्टर ये दिखा कि कहीं ना कहीं ऐसे जो कृत्य करते हैं लोग कहीं ना कहीं मानसिक रोगी भी हैं. ऐसे जघन्य कृत्य करने का मतलब है कि कहीं ना कहीं विक्षिप्त मानसिकता के हैं. तो इनको साइकोलॉजिकली भी ट्रीट करना जरूरी है कि ऐसे लोग को कैसे रोका जाए. नहीं, मानसिकता की बात मैं इतना नहीं कहूंगी कि एक एक वो इस एनवायरनमेंट से आते हैं जहाँ पे आप देखते हो कि यू कैन इजीली डू, women is nothing but a sexual object. The whole attitude, mental attitude which becomes a part of their family. Okay, so that is also something which we have to really emphasize upon and understand. तो जिस तरह से हमने women को treat किया है, they are only seen as sexual objects. They are there for the pleasure of men. ये सब जब तक ये thinking बदलेगी नहीं society में, we cannot really bring about any change. Fine. Yeah. तो इतना mental sickness नहीं है, but the whole environment जिसमें आप बड़े होते हो, आप imbibe करते हो, आप अपनी फैमिली से ही तो केवल imbibe नहीं करते हो, आप सोसाइटी से करते हो, आप मीडिया से करते हो, आप अपने circumstances से करते हैं. So all have to work together to bring about a change. Fine. Good morning, ma'am. I have two questions. Well, yeah, introduce yourself. I am Dr. Snehata. I'm here assistant professor in Sitapur, Hindu Kanya Mahavidyalaya, Lucknow University of Lucknow. So I have two questions. First question is that what's the basic difference between gender and sex? Because everybody just mash up with both concepts. And दूसरा ये है कि मैं ये जानना चाहती हूँ कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में खुद भी मैं काम कर रही हूँ और यूनिवर्सिटीज में भी मैं पढ़ी बड़ी बट देर इज नो एनी प्रॉपर सैनिटेशन और देर इज नो एनी प्रॉपर टॉयलेट रिगार्डिंग लेडीज. तो क्या जेंडर बजटिंग करते वक्त ये देखा जाता है? इतने बड़े लेवल पे हमने स्वच्छ भारत अभियान को फैला दिया, हम जाके सब जगह बता दिए,
कि वी आर जस्ट सेंसिटाइजेशन ऑफ दिस की स्वच्छ भारत अभियान आएगा और ये चीजें होंगी। लेकिन कहीं पे भी, मैं खुद एक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ के आई और वहां पे जितनी भी लड़कियां आती थी दूर से पढ़ने के लिए 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर, वो हॉस्टल में आती थी वॉशरूम को यूज करने के लिए। मतलब वहां पे कोई लेडीज के लिए वॉशरूम नहीं था, जिसकी वजह से ड्रॉप रेशियो भी बढ़ रहा है। मैं बहुत सारी बच्चियों को देख रही हूँ, वो कॉलेज नहीं आती क्योंकि उनका एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल है जो कि पूरे एक हफ्ते 10 दिन वो डिस्टर्ब होती हैं और प्रॉपर हाइजीन प्रॉपर चीजें नहीं हो रही। तो क्या इसका कहीं पे इस इशू को कहीं रेज किया जा रहा है? देयर इज एनी जेंडर बजटिंग और क्या है? मैं इसके बारे में जानना चाहती हूँ। स्नेहलता, वेरी हैप्पी, मैं भी इलाहाबाद से पढ़ी हूँ और मैंने वहाँ वेलकम, मैं उस यूनिवर्सिटी में मैंने पढ़ाया भी है। तुम पैदा भी नहीं हुई होंगी शायद, 1977 से लेके 81, फिर शादी के बाद मैं हैदराबाद आई हूँ तो 40 हूँ। नहीं, व्हाट यू रेसी, लेट मी टेल यू फर्स्ट, मैंने पहले भी बताया 2 कॉन्सेप्ट्स हैं, सेक्स एंड जेंडर। सेक्स इज नेचुरल, मेन एंड विमेन। आपके जो अब तो ठीक है, सेक्स चेंज से वो होती हैं सर्जरीज एंड ऑल, इट कैन चेंज, बट वी बिलीव दैट इट इज नेचुरल, इट इज नॉट हायरार्किकल। जेंडर जो है वो एक सोसाइटी का क्रिएटेड है, इट इज आर्टिफिशियल, तो उसको आप बदल सकते हो। विमेन गिव बर्थ टू चिल्ड्रन बिकॉज ऑफ सेक्स, बट विमेन टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन बिकॉज ऑफ जेंडर। ये क्यों माना जाता है? विमेन बर्थ देती हैं बच्चों को, लेकिन ओनली विमेन हैज टू टेक केयर ऑफ अ चाइल्ड। ये क्यों? मेन कैन ऑल्सो टेक केयर, आजकल बॉटल्स है, फीडिंग है, यू कैन टेक केयर, बट ये रिस्पॉन्सिबिलिटी में व्हाई डोंट मेन शेयर इक्वली? ये डिफरेंस है सेक्स एंड जेंडर में। तो जेंडर जो है एक आर्टिफिशियल क्रिएशन है, सेक्स जो है वो नेचुरल है। तो हम जेंडर को हम बदल सकते हैं, सेक्स को यू मे नॉट चेंज। और सेकेंड, यस, तुम जो हाइजीन की बात कर रही हो, मैंने 1995 में पहली बार हैदराबाद में हम लोगों ने एक पुलिस कन्वेंशन, मेरी किताब है पुलिस में विमेन पे लेकर के रिफॉर्म, तो वहां पे उस समय जो एक डिमांड उनकी थी कि विमेन के लिए टॉयलेट्स होना चाहिए। एंड जब दिल्ली में किरण बेदी इन लोगों के सामने डिस्कशन हुआ, सब लोग इतने शॉक थे कि आज इतने साल इंडिपेंडेंस के बाद हम एक विमेन के लिए टॉयलेट की मांग कर रहे हैं। एग्जैक्टली मैम, इवन एचओडीज के लिए भी नहीं होता है वहां पे। हमने उसको इम्पोर्टेंस ही नहीं दी हुई है। सो दिस इज समथिंग, मैं NAC में जाती हूँ, पिछले 10-15 साल से मैं NAC विजिट पे जाती हूँ, तो सबसे पहले हम जाके देखते हैं, क्योंकि जो उनको ग्रेड देने से पहले कि व्हाट फैसिलिटीज दे आर प्रोवाइडेड फॉर वुमेन, एक बहुत बड़ा मार्क्स उसमें मिलता है कि उनके कॉमन रूम है, उनके पास ये पैड वेंडिंग मशीन्स हैं कि नहीं, और डू दे हैव दिस रिमूवल ऑफ दीज पैड्स। तो ये सारी बातें हम देखते हैं, वी आर एम्फसाइजिंग, UGC इज आल्सो एम्फसाइजिंग नाउ, बट इट इज अ सैड रियलिटी। बहुत सारे ऑफिसेज में पहले, अब तो चेंज हो गए, जब हम 19s और 2000 की बात करते, विमेन को एम्प्लॉय नहीं करते थे क्योंकि उनको एक अलग से टॉयलेट बनाना पड़ेगा। So these are realities. क्योंकि एक मैं आपको, there is a beautiful article I would recommend you. It is, please look at it. If men start menstruating, मेरा email लीजिए, अगर मेरे को मिलता I will send it to you. तो ये बड़ा interesting, अगर men start menstruating तो हम उसको कितना glorify करते हैं, कैसे हम उसको, she has written, it's very interesting article which you can read online. So this is something which you can read it, and it really refers to this and let me so this is something which you can read it, and how we have really neglected this whole issue of hygiene and health. Thank you. एक्चुअली मैम, मैंने इस पे PhD का टॉपिक बनाया था अपना, बट somehow लोगों ने इस पे मुझे करने नहीं दिया, क्योंकि आई एम फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस और पीपल से कि दिस टॉपिक फ्रॉम सोशल साइंसेज एंड सोशियोलॉजी, दैट्स व्हाई आई कैन नॉट परस्यू। बट मेरे को बहुत मन था कि ये इतना हील कर रहा था कि इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में हम जाते हैं और कहीं पे भी टॉयलेट नहीं होता। इवन हम जिस कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, इतना बुरा हाल है टॉयलेट्स का, इवन हम लोगों के भी टॉयलेट्स का। बट कितना बजट आता होगा, कितना खर्चा होता होगा, बट कोई इस पे ध्यान नहीं देता। क्यों नहीं देता? गवर्नमेंट क्यों नहीं कर रही है? तो ये प्लीज मैं सबसे रिकमेंड करूंगी, इवन मैं, आप प्लीज नेट पे जाइए, ग्लोरिया स्टेनम का आर्टिकल है, इफ मेन स्टार्ट मेंस्ट्रुएटिंग, तो उसका हाउ वी विल लुक एट इट इन अ वेरी डिफरेंट वे। फाइन, या
if men could menstruate. Gloria Steinem. Ma'am, I'm Shraddha Sinha from Yeah. Mahila Degree College, Lucknow. अब बहुत सारे मैम वर्क प्लेसेस पे सेक्सुअल हैरेसमेंट कमेटी बनती है, मेरे कॉलेज में भी बनी हुई है और बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में मैंने देखा है कि कमेटी बनती है। बट जब भी कोई केस आता है तो जो डिसीजन मेकर्स हैं, जो डिसीजन ले रहे हैं, वो भी क्योंकि उन्हीं में से हैं जिसने क्राइम किया है या जो कल्प्रेट है, तो ऐसे में उनकी लॉबी बहुत स्ट्रांग हो जाती है और जो विक्टिम का केस है वो सप्रेस हो जाता है। तो बहुत सारी चीजें अभी ऑन पेपर ही हुई हैं और उनको मतलब इन एक्शन आने में बहुत टाइम लगेगा। मैंने खुद मतलब पर्सनली वो चीज देखी है कि इस तरह के केसेस सप्रेस हुए हैं क्योंकि लॉबी बहुत स्ट्रांग थी और विक्टिम क्योंकि एक स्टूडेंट थी या एक पीएचडी स्कॉलर थी, इसलिए उसकी बात को नहीं सुना गया और क्योंकि वो प्रूफ भी नहीं दे पाई। डेफिनेटली हाँ, दे आर नॉट गिवन दैट इम्पोर्टेंस। वो तो है, मैं भी खुद सेक्सुअल हैरेसमेंट कमेटी में अपनी यूनिवर्सिटी में 2-3 बार रही हूँ और इट इज अ फैक्ट, यू नो, क्योंकि हम उसको इम्पोर्टेंस देते ही नहीं है ना। सी अनलेस वी चेंज दैट होल कल्चर, सबसे पहले तो वो गर्ल तो आएगी नहीं रिपोर्ट करने के लिए ना। ये जो केस हुआ था, निर्भया का कांड जो हुआ था, उसकी मदर ने क्या कहा था, उसने कहा कि अगर मेरे को मालूम होता 7 साल लगे कि इतने हमको सफर करना पड़ेगा, मैं कभी नहीं रिपोर्ट करती इसको। तो वी नो लॉ सिस्टम ये सब इट इज सो बायस्ड, क्योंकि आफ्टर ऑल कौन, हु आर द वन हु इज इम्प्लीमेंटिंग इट इज द मेन। So, you know, they don't even pay attention to it. So, unless we change the mindset, क्यों हमने ये कोर्सेज में एक जेंडर सेंसिटाइजेशन वाला टॉपिक रखा है? हमको माइंड से चेंज करना है। सारे जजेस, हमने एक कोर्स बनाया था जजेस के लिए, वो लोग सब फैमिली की बात करते हैं, विमेन की बात करते हैं, बट हाउ जेंडर सेंसिटिव आर आवर जजेस? यू नो, ये सारे इश्यूज हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। सारे आदमी, मैंने पुलिस पे भी किया है कि दे आर ऑल अपॉइंटेड, महिला सुरक्षा ये सब बात करते हैं, बट हाउ सेंसिटिव आर दे? यू नो, ये सारे इश्यूज, बिकॉज वी आर ऑल पार्ट ऑफ सोसाइटी, अंडरस्टैंड? फाइन। यस मैम। Very good afternoon, ma'am. Introduce yourself. Thank you for a very great session and mind-boggling and thought-provoking session. Myself, Dr. Poonam Kumari. I'm assistant professor at zoology department at Multani Mal Modi PG College. Ma'am, my question where is it? Ma'am, it's in Modi Nagar, near to Okay. And my question is related to gender sensitization at the lower strata of the society. मैम, मेरे घर में खुद मेड है, वो मदर डॉटर दोनों है, एंड दे आर अर्निंग मोर देन हर हस्बैंड, बट फिर भी जब बात होती है तो शी सेज वो मुझे मारते हैं। तो मैम इस मतलब मैं बहुत बार उनको ये भी बोलती हूँ कि क्यों आप पिटते हो, ऐसे आप रेजिस्ट क्यों नहीं करते हो? तो उनमें मैम एक डर है, पता नहीं क्या जो भी चीज है। मैम इस चीज के लिए क्या किया जा सकता है? व्हाट वी कैन डू इन दिस रिस्पेक्ट? जेंडर सेंसिटाइजेशन लोअर स्ट्रेटा में किस तरीके से आएगा? क्योंकि उनमें इतनी हिम्मत ही नहीं होती है कि वो फेस कर सके अपने हस्बैंड। मैंने बोला ना कि ये क्या है, बहुत सारी वुमेन सोचती है दिस इज आवर लॉट, हम औरतें पैदा हुई तो हमको ऐसे ही। गुजरात में एक स्टडी हुई थी तो जहाँ पे बहुत सारी गांव की औरतें बोलती जब तक वो आदमी हमको मारेगा नहीं वो कैसे मर्द कहलाएगा। तो ये सब यू नो नोशंस हैं हमारे। So this applies more to the lower class, but at least these women are much more bold. सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मिडिल क्लास में आती है, अपर क्लास doesn't bother, lower class में they can even walk out. But yes, this is an issue. मेरी अभी रोटलेट से किताब आई है last year, it is called Women's Work in Unorganized Sector. तो ये जो बीड़ी बनाती हैं औरतें, मैंने उनका स्टडी की थी। मैं गांव में गई निजामाबाद में, पूरा जो घर है वो माँ और बेटी के कमाई से कर रहा है। फादर है वो अनएम्प्लॉयड है, 3 लड़के, उन्होंने किसी ने 10th पढ़ा है, किसी ने 8th पढ़ा है, 9th पढ़ा है, कोई भी नहीं करता। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा तुम लोग क्यों नहीं हेल्प कर देते हो? थोड़ी बीड़ी तुम बना लोगे तो पैसा ज्यादा आएगा। मैडम आप क्या बात कर रही हैं, ये तो औरतों के काम होते ना, हम कैसे कर सकते हैं? तो वो लोग ले जा करके कॉन्ट्रैक्टर के पास जाएंगे, फैक्ट्री में जाएंगे, एंड प्रोडक्ट वहां से पैसा लाना वो सब वो कंट्रोल करेंगे। तो ये सारा जो नोशन है इकोनॉमिक्स में, विमेन्स वर्क मेन्स वर्क, what women can do, what men can do, you know, all this, there are so many issues. If we, you know, I can go on talking for the whole day, and these are there. What you have said is a fact, you know. So we have to make these women more aware, make them confident कि ठीक है तुम्हारे पास पैसा है। Psychologically भी middle class women इतना suffer करती हैं, but how many go and complain?
ये सारी जो इज्जत नोशन ये सारी है हमारे पास ना, यू कांट कंप्लेन अगेंस्ट योर फैमिली। बहुत डीप रूटेड है, आई डोंट थिंक सो ये मतलब इतनी जल्दी ये सॉल्यूशन मतलब नहीं, बट निकालना तो पड़ेगा ना, हमारे लाइफ टाइम में तो देखना पड़ेगा। इट्स नहीं तो दीज आर यस इश्यूज जो मैं बता रही हूँ, यू नो। तो ये कितने, अगर एज अ हिस्टोरियन, आई एम अ हिस्ट्री प्रोफेसर, we talk in terms of capitalist mode of production. जब से हमारी सोसाइटी बनी है कितने मोड ऑफ प्रोडक्शन चेंज हुए। We started with primitive mode of production, slave mode of production, feudal mode of production, capitalist mode of production, socialist mode of production. But patriarchy तो कब से चली आ रही है ना? It gets further strengthened when there is a transition. So सबसे पहले जब सोसाइटी इवॉल्व हुई थी तो what happened? Because of our erect posture, आप किसी जानवर को you know बच्चा पैदा करते हुए देखो, गाय को, बिल्ली को, कुत्ते को, within few minutes they are on their own, they work. But a human child, you have to take care of that child for nearly 6 months to 3 years. We don't even have hair that we can protect. Kyonki we started walking from force, we started walking on our toe. When we had an erect posture, it affected the women much more because of our straight posture. The birth canal of a woman became narrow. So जो child born होता है, it is born at a very less stage of development than compared to an animal kingdom. So the women had to take care. पुराने जो civilizations थे, 2 worships होती थी, women को mother goddesses की worship होती थी. And menstruation, they didn't understand women का role. तो पुराने आप भीमबेटका जितने भी आप केव पेंटिंग देखो वो रेड कलर से हैं, ऑर्किड से हैं. तो women were given the position of a mother goddesses and menstruation was highly regarded. लेकिन जब एंगल्स बात करते हैं, गर्डा लर्नर बात करती है patriarchy, creation of patriarchy. I would suggest each one please read that book. It's a fantastic book, Gerda Lerner, Creation of Patriarchy. जब ये बड़े बड़े empires बने, Mesopotamia, Egypt, you had a class of bureaucracy, aristocracy that was a military class. Private property जब develop होती है, एंगल्स जब बात करते हैं, he says it was the day of mother's defeat. क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी जब आपको पास करनी है, आप बता तो सकते हो कि मदर कौन है बच्चे का. अब तो चलो सरोगेसी की बात हम नहीं कर रहे हैं, बट फादर कौन है आप कैसे प्रूव करोगे? तो सबसे पहले आपको विमेन को कंट्रोल करना है ताकि दैट चाइल्ड हु इज बोर्न बिलोंग्स टू दैट मैन. तो जब प्राइवेट प्रॉपर्टी इमर्ज हुई, आपको अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी अपने बेटे को देना है, तो यू हैव टू एंश्योर दैट द सन इज योर्स. So you had to control women. So, you know, it's a long historical development which took place. Fine. Yeah, thank you so much. Yeah, Jitendra Kumar has raised. Ashok Gupta, can you please come? Jitendra, introduce yourself, and then after this, Ashok. And Sonu Raj, please. Yeah. Yes, ma'am. I am Dr. Jitendra Kumar, Assistant Professor of Zoology in the Mahatma Gandhi PG College, Gorakhpur. Gorakhpur. Which subject? Which subject? Zoology. Zoology. Good, good. Lot of science students. I'm very happy. You know, there are so many science students also. Yeah. मैम जैसे बर्थ के बाद जो होता है, जो यंग चाइल्ड होता है वो सबसे ज्यादा मदर के पास रहता है और लगभग 10 ईयर तक, लगभग क्लास 8 से 12 तक लगभग जो है बच्चा ज्यादातर घर में रहता है, मदर के पास रहता है. और उस एज में अगर जो बच्चों को बताया जाता है वो परमानेंट मेमोरी में जाता है, आगे जो है स्टोर रहता है. तो कहीं ना कहीं मेन तो रिस्पॉन्सिबल है कि वो उसको फ्रीडम ज्यादा देता है बच्चों को, लेकिन कहीं ना कहीं वुमेन भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा पा रही कि बच्चों को वो पूरी तरह से उस समय उस एज में 10 से 12 साल की एज में जब उनके पास ज्यादा रहता है तो उस चीज को बताएं जो गलत है या कहे क्या गलत है क्या सही है, ताकि जब वो सोसाइटी में एक्सपोज हो तो उससे वो अवॉइड करें उस चीज को. तो कहीं ना कहीं फीमेल भी उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी तरह से नहीं कर पा रही क्या? नहीं, जब आपने वुमेन को एम्पावर ही नहीं किया है तो वो कहाँ से वो रिस्पॉन्सिबिलिटी करेगी ना. फर्स्ट यू हैव टू एम्पावर हर, ट्रीट हर एज एन इक्वल हु प्लेज अ मेजर रोल. आपने पता नहीं किसी ने किबुट्स के बारे में सुना है? ये एक सिस्टम था 100 इयर्स पहले, इजराइल ने स्टार्ट किया था. इजराइल में या इजराइल किबुट्स में क्या था, उनका मानना था कि सबसे ज्यादा करप्शन फैमिली से आता है. जब आप एक फैमिली में पले बढ़ते हो तो एक नेपोटिज्म आता है, आप फैमिली को ही प्रमोट करते हो, उनको ही पूरा पैसा देते हो, उनके लिए पावर करते हो, इट लीड्स टू करप्शन एंड ऑल. तो उन्होंने एक ऐसा सिस्टम इवॉल्व किया जिसमें फैमिली इज नॉट इम्पोर्टेंट,
तो किबुट्स में क्या करते थे, जब 8-10 बच्चे पैदा होते थे तो वो बच्चा एक मदर और फादर से आइडेंटिफाई नहीं करता था कि ये मेरी मदर है, ये मेरा फादर है. दे वुड ऑल कम इन अ ग्रुप. विमेन एक साथ आती थी, उनको नर्सिंग क्लीन करती थी, आदमी एक साथ आते थे, उनके साथ खेलते थे और जो भी थे. तो उन्होंने देखा कि ये बच्चे वेर मच मोर लॉयल टू द स्टेट. उनकी इंडिविजुअल से कोई लॉयल्टी नहीं थी. दे वेर मच बेटर. लेकिन फिर भी 100 years के बाद दे हैड टू गिव अप दैट सिस्टम. क्योंकि कुछ भी बोलो, फैमिली इज देयर. जब सारे दरवाजे बंद हो जाते, फैमिली ही एक रहती है. यू कैन नॉट एबॉलिश द फैमिली. हमारे पास कोई ब्लूप्रिंट ही नहीं है कि फैमिली जाएगा तो व्हाट विल वी हैव. एंड आई वाज इन ताइपे. अब तो इन्होंने गिव अप कर दिया है. ताइपे फॉलोड अ वेरी कम्युनिस्ट सिस्टम. आप इमेजिन करिए 7 से 8 के बीच में क्या होता है. सिटी लाइक हैदराबाद, इलाहाबाद, लखनऊ, औरतें क्या कर रही हैं, जल्दी जल्दी खाना बना रही हैं, पैक कर रही हैं, बच्चों को स्कूल भेज रही है, सब जगह. Lakhs and crores of women are doing the same work. तो मार्क्स ने क्या कहा था, इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअलाइजिंग इट, अगर हम उसको कम्युनिटी लेवल पे करेंगे, इट विल सेव द लेबर ऑफ women. तो ताइपे ही ने इसको वो किया था. आई वाज इन ताइपे फॉर 10 days. साढ़े 9 बजे आ जाती थी विमेन. बच्चे स्कूल चले जाते थे, वर्क पे चले जाते थे, कॉलेजेस पे, ओल्ड एज होम, फैक्ट्रीज, ये सब. 9 बजे उनका एक डब्बा सा आ जाता था और वो सब खोल के उसको ब्रेकफास्ट कर लेते थे. 1 बजे फिर एक और डब्बा आ जाता था, पूरा कंट्री में प्रोवाइड होता था, सब लोग वो खाते थे. शाम को जब 5 बजे औरतें जा रही थी तो वो जाके कुछ सब्जी ले लेती थी. शाम को वो घर क्लीन करती थी, फिर एक सूप चढ़ाती थी. तो मैंने कहा माय गॉड, अगर औरतों को एक टाइम खाना बनाना पड़े, क्या फ्रीडम होगी. बट आई कुड नॉट ईट दैट फूड फॉर मोर देन 1 or 2 days. देन आई सेड यस, वी हैव स्पॉइल्ड आवर मेन. लुक एट आवर फूड. छौंकना, काटना, ये इसके साथ जाएगा, वो उसके साथ जाएगा. फेस्टिवल्स क्या होते हैं, आई टेल माई स्टूडेंट्स, फेस्टिवल इज ओनली फॉर मेन एंड बॉयज, नॉट फॉर वुमेन. बाकी दिन आप 5 चीजें बना रही, उस दिन आपको 10 बनानी है. So, look at the way we have evolved, the way we have worked. So, there have been people who have thought of solution. Marx का था कि आप उसको centralize कर दीजिए. सारा women's labor is wasted individually. अगर ऐसे आप centralize कर दे तो so much labor is saved. But nothing has happened. It's something which continues. Okay, what about Sonu Raj, Ashok Gupta? Sonu Raj, yeah, please. Can you introduce yourself? मेरा नाम Ashok सोनू Gupta after this, yeah. है. मैं साकेत पीजी कॉलेज जो अयोध्या में है और मनोविज्ञान विषय में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ. मैम मेरा प्रश्न ये है कि मैक्सिमम जब सेक्सुअल हैरासमेंट की बात होती है तो मेंस का ही रोल आता है. वो सही भी बहुत हद तक, लेकिन कई हद में ये देखा गया है कि वुमेन्स का भी इम्पोर्टेंट रोल रहता है. जैसे भी अयोध्या में एक केस आया था कि एक कोई लेडी थी, वो उस लड़की की बुआ लगती थी, तो उन्होंने उसको सेक्स के लिए जो भी है उसके लिए कमिट किया था, किसी भी मेंस के पास पहुंचाया था. या जो हम भारतीय परंपरा देखें जहाँ पे सास बहू का रोल आता है, मैक्सिमम केस में देखते हैं कि चाहे वो दहेज को लेके हो या घर के काम ना करने को लेके हो, तो वुमेन्स का भी रोल कहीं ना कहीं आता है. तो मेंस की बात तो समझ में आती है कि मेंस को चलिए महिलाओं की समझ नहीं, उनकी फीलिंग्स की. बट एक महिला कहीं ना कहीं, एक लड़की कभी ना कभी रहती है, बेटी रहती है, बहू रहती है, तो वो क्यों ये गलतियां करती है? मैन कहाँ पे इम्प्रूव कर सकते हैं अपने घर में या परिवार में? थैंक यू मैम. सोनू राज, एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपने रेज किया. पता नहीं एक फिल्म आई थी, मैं नाम भूल रही हूँ उसका, ये प्रियंका चोपड़ा और अक्षय खन्ना की ना, जब वो सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस उसके अगेंस्ट डालता है. आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ दैट फिल्म. तो वो शी इज दी ऐतराज, या तो उसमें तो सेक्सुअल हैरेसमेंट केवल आदमियों का ही नहीं ना. हमको ये समझना पड़ेगा जब हम सेक्सुअल हैरेसमेंट की बात करते हैं, इट इज नॉट अबाउट मेन एंड वुमेन, इट इज अबाउट पावर. पावर जो है वो अगर वुमेन के पास है उतनी ज्यादा, तो शी कैन ऑल्सो हैरेस. तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग फिल्म थी ऐतराज की. दैट शी हैज दैट पावर. She tries to exploit him, and then when he doesn't fall into that trap, he says that yes, I will file a case, और पूरा केस वो लोग लड़ते हैं. तो yes, जो आप बात कर रहे हैं कि ठीक है, फैमिली में ये रहता है. मेन है कि इतनी बहुत सारी फैमिलीज, इतना पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग होता है. जिस तरह से हमने पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर को एक रिस्पेक्ट का नाम दे दिया है
कि आप बड़ों के सामने विमेन को ही सारी रिस्पेक्ट रखनी है, मेन को तो मतलब नहीं है। तो ये सारे जब तक हम नोशंस चेंज नहीं करेंगे हम नहीं बदलाव ला सकते हैं उसमें। फाइन, या नेक्स्ट प्राची सिंह, अशोक गुप्ता। प्राची, अशोक गुप्ता। मैं अशोक गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज आजमगढ़। ओके, गुड, वेरी नाइस। आई एम आल्सो फ्रॉम हिस्ट्री। मैम मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि अभी भी मंथली सर्किल के समय महिलाओं को मंदिरों में प्रवेश करने नहीं दिया जाता था, उनको ये बिना नहाए खाना पीना नहीं बना सकती थी। ये एक तरीके से मैम भेदभाव ही तो मतलब है। या बहुत ये केरला में भी बहुत बहस हुई, अयप्पा मंदिर में औरतों को जाना चाहिए कि नहीं। ये थोड़ी उनका वो बोलते हैं हमारा इतना पुराना ट्रेडिशन चला रहा, उसको हम नहीं चेंज करेंगे। बहुत सारे लोग जो जाना चाहते हैं, तो हाउ डू यू मेक अ डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज कल्चरली रिकॉग्नाइज्ड? ये सारे ट्रेडिशंस के नाम पे हमने विमेन पे थोपा गया है ना, क्योंकि विमेन कुक कर रही हैं तो आपको नहाना है वो करके। मैं तो कुमाऊं रीजन से आती हूँ पहाड़ में, तो मेरे को याद है, अब तो चलो चीजें बदल गई हैं, लेकिन हम लोग जब छोटे बच्चे थे तो वो एक पेटीकोट नहीं पहन सकती थी वो लेडी, ब्लाउज नहीं पहन पाती थी, क्योंकि ब्लाउज एंड पेटीकोट आर एसोसिएटेड विद मुस्लिम कल्चर। मिडिवल पीरियड में स्टिचिंग आई। अगर आप पुराने अजंता, एलोरा, ये सारे आप देखिए, टेम्पल्स, केव पेंटिंग्स, ये सब, तो वो खाली एक रैप अराउंड पहनती थी विमेन। देयर वाज नो स्टिचिंग एट दैट टाइम। तो इमेजिन एक नई बहू जो खाना बना रही है, उसको साड़ी अपनी लपेटनी है, नहा करके पूरे, एंड शी इज सर्विंग द एल्डर्स इन द फैमिली। तो ये सारे जो हमने रीति रिवाज जिस तरह से बनाए हैं, इट लीड्स टू अ लॉट ऑफ ऑपरेशन डेफिनेटली। तो ये कहाँ से शुरुआत होगी? मे बी जब एक इंडिविजुअल फैमिलीज आई हैं, थोड़ी बहुत तो फ्रीडम विमेन को मिली है। जब विमेन जब मैं बच्ची थी उस समय से देख करके आज सो मेनी विमेन आर कमिंग आउट, दे आर working. तो एक individual family has moving into urban areas, it has brought a lot of freedom in that sense. Fine. Prachi Singh. Good afternoon, ma'am. Yeah, introduce yourself. Ma'am, I'm an assistant professor of English in Vaikuntha Devi Kanya Mahavidyalaya, Agra. Ma'am, in theory paper, I used to teach feminism. And what I generally used to share with my students कि जो ये छोटे छोटे चेंजेस है वो हमारे घर से ही आएंगे। जैसे हमारे घर जब हम लोग बचपन में खेलते हैं, तो अगर जो भाई गिरता है उसको चोट लगती है, तो उसके साथ गार्जियन वेदर ही इज दैट इज मदर और फादर, वो यही कहते हैं अगर जो रोने लगता है तो कि नहीं, बॉयज डोंट क्राई। उसको लगता है कि लड़के नहीं रोते हैं, या फिर लड़की हो क्या कि रो रहे हो। तो मैम अगर जो उसकी मेंटालिटी बचपन से ही यही कर दी जाएगी, तो कल को जब वो बड़ा होता है तो फिर वो कोई भी व्यवहार करता है उसको तो यही लगता है मैम कहीं ना कहीं तो उसका मेंटल सेटअप हो गया है, और वो एक जैसे एक मैम उसके व्यवहार में रूडनेस दिखाई देने लगती है। फिर वो कोई भी व्यवहार, किसी भी लड़की के साथ कुछ भी व्यवहार करे, उसे बुरा लगता ही नहीं है। मैम ये इतना धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है कि कल को गार्जियन को वृद्धाश्रम तक भेज देते हैं बच्चे, और उन्हें ये चीजें कभी नहीं बुरी लगती हैं। तो मैम वो चेंज तो घर ही से आना पड़ेगा, क्योंकि उसे भी दर्द होता है, वो गिर रहा है, उसको अगर जो किसी लड़की ने डांट दिया तो उसको रोने का अधिकार है, वो रो सकता है, उसके साथ कुछ भी व्यवहार हो पहले रोए। डेफिनेटली, यही मैं कह रही थी, बहुत अच्छी बात कही है तुमने प्राची। सी ये जो हमने ह्यूमन इमोशंस को भी डिवाइड कर दिया है ना, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन में। सी अ वुमेन कैन आल्सो बी एग्रेसिव व्हेन रिक्वायर्ड, अ मैन कैन आल्सो क्राई व्हेन रिक्वायर्ड, बट हमने men have to behave in this way, women have to behave in this way, so that is the perception. Yes, next रजनी रावत, आप लोगों का टाइम खत्म हो रहा, आप देख लीजिए कितना। मैं एक बात बोलना चाहूंगी, मेरा आई हैव अ पॉडकास्ट, मैं इनसे शेयर कर दूंगी, प्लीज ही विल शेयर इट विद यू ऑल ऑन ईमेल। तो ये आप उसमें से पास इट ऑन टू स्टूडेंट्स। काफी स्टूडेंट्स ने मैं 10 साल से यहाँ पे एक मारी चिन्ना रेड्डी इंस्टीट्यूट है जहाँ भी 23 को मेरा टॉक है। मेनी द बॉयज हु गेट सेलेक्टेड इनटू आईएएस एंड हु कम इनटू आईएएस, मसूरी में उनकी ट्रेनिंग होती, फिर वो हैदराबाद आते हैं। तो काफी स्टूडेंट्स को ये हेल्पफुल लगा है। तो मैंने, इट इज कॉल्ड जेंडर, कल्चर एंड हिस्ट्री।
तो उसपे इट्स अ पॉडकास्ट ओरल, तो वो मैं आपसे शेयर करूंगी। जो भी मैं बात कर रही हूँ वो डिटेल में आप उसको सुन मैंने एक पॉडकास्ट 10 मिनट मेरा मैक्सिमम था, उससे ज्यादा नहीं करा है, बट सम एक्सटेंडेड। फाइन, रजनी बोलिए आप, टाइम क्विकली। Good afternoon, ma'am. I'm Rajni Rawat, Assistant Professor of Commerce, Government Degree College, Shravasti. Where? Ma'am, Shravasti, ma'am, Shravasti. Where is it? It is near Bahraich, Nepal border. Wow, okay, good. Approx 160 kilometers from Lucknow. I am from Lucknow, posted in. Okay, good. हाँ बोलिए, क्या क्वेश्चन है आपका? यस रजनी, नहीं आ रही हो तुम, सुनाई नहीं दे रहा है। हेलो मैम, नेटवर्क इशू कुछ होगा। और ये भूपेंद्र सिंह, रजनी जब तक आती, भूपेंद्र सिंह, या इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। मैडम नमस्कार। मैम, आई एम ऑडिबल? अच्छा, ये मैम, बोलिए actually, ma'am, actually I'm in college. My college is in rural area, so network problem is there. So ma'am, when I raised my the first question that came is कि the first आप question लिख that दीजिए, आपका ना वॉइस ब्रेक हो रहा है, थोड़ा लिख के भेज दीजिए, तब तक हम You just write down, ma'am, your question and comment. हाँ ठीक है, भूपेंद्र सिंह आप बोलिए। जी मैडम नमस्कार, मैं डॉक्टर भूपेंद्र सिंह, हरिओम सरस्वती जनवरी से इतिहास का असिस्टेंट प्रोफेसर। ओके, हिस्ट्री में गुड। जी मैडम, मैं थोड़ा सा ये मतलब हिस्ट्री के बारे में कुछ आपसे जानकारी लेना चाहता हूँ। एक सिंधु घाटी सभ्यता में जो लिपि है उसको डिकोड करने के बारे में अभी एक मैं गूगल पर पढ़ रहा था मैडम, लेकिन वो वजह से कहीं उसका मिस हो गया। उसमें किसी का नाम के नीचे सरकार लगता है और उसने सिंधु घाटी सभ्यता को जो लिपि है उसको डिकोड करने का प्रयास किया। अच्छा, लेकिन उसको फिर वो जैसे अपना रिप्रेजेंट करने के लिए पेपर जा रहे थे, उनको जो है किसी मतलब दुर्घटना में शिकार हो गए उसका, और वो पेपर रिप्रेजेंट नहीं कर पाए। अभी एक जानकारी वो भी प्राप्त हुई है कि जो बिहार में संथाल जनजाति है वो सिंधु घाटी सभ्यता में जो लिपि है उसके अक्षरों का काफी इस्तेमाल करती है। या ये ना डॉक्टर शिंदे हैं पूना डेक्कन कॉलेज से, उनका काफी आर्टिकल्स आप देखिए। हमारी बहुत खराब लग रहा है कि हम डिकोड नहीं कर पाए इंडस वैली सिविलाइजेशन, अनलाइक इजिप्ट, मेसोपोटामिया जहां उन्होंने डिकोड कर दिया है। इफ वी वुड हैव बीन एबल टू डिकोड इट, आई थिंक वी वुड हैव गॉट सो मच इंफॉर्मेशन। अनफॉर्चुनेटली वो नहीं है, लेकिन शिंदे जो हैं वो सर डेक्कन कॉलेज से, वो ये बात करते हैं, हम लोग ये पढ़ाते हैं ना हिस्ट्री में कि पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन आया, फिर एक ब्रेक आया, फ्लड्स आ गए, फिर वैदिक सिविलाइजेशन आया। वो ये डिस्कस करते हैं कि एक कंटिन्यूटी है सिविलाइजेशन में, ब्रेक कहीं नहीं आया है हमारा। तो उन्होंने ना पंजाब के गांव में जा करके कितने फीचर्स मिलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन से, काफी उनकी इंटरेस्टिंग रिसर्च है, आप उसको देखिए, प्रोफेसर शिंदे। So you will get that information, but unfortunately, yes, we have not been able to decode the Indus Valley civilization. Yes, who else? Anyone else? I think time is over. Anyone has a question? Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Ma'am, please share your Thank you, opinion. ma'am. धन्यवाद मैडम। thank you so Okay. much, ma'am. Thank you, See you ma'am. all. Ma'am. चलिए, Thank you, ma'am. PPT शेयर करवा दीजिए प्लीज। हाँ, मैं अपना वो शेयर करता हूँ। Thank you. Okay, see you all the best. अच्छा लगा मेरे को, काफी नॉर्थ वाले थे इस बार। मोस्टली दे लॉट ऑफ पीपल। सी ऑनलाइन का प्रॉब्लम है ना, यू डोंट स्पीक फेस टू फेस, तो यू डोंट नो कौन कितना सीरियस है, कौन सुन रहा है। बट इसमें रीच तो बहुत होती है ना, इतने लोग सुन पाते हैं, जो सामने फेस टू फेस हम खाली 30-40 लोगों से बात कर सकते हैं। तो ये एक एडवांटेज है, इतने लोग जुड़ जाते हैं। बट लेट्स सी, सबके टेक्नोलॉजी के अपने प्लस भी है, माइनस भी है। ओके देन, सी यू ऑल, बाय। Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. बाय, सी यू, Thank you, ma'am. बाय। मैम शेयर कॉन्टेक्ट।
हेलो डॉक्टर अमन जी।